ஓம் சாய்ராம். அனைத்து சாய் பக்தர்களுக்கும் வணக்கம். சாய்ராம், சாய் சீனு. சாய்ராம், இன்றைய தினம் இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம சத்குரு ஷிரடி சாயப்பாவுடைய புனிதமான ஸ்ரீ சாய் சச்சரிதம் மகாபாராயணம் இன்னைக்கு ஷிரடியில் முதல் நாள் துவக்க விழா தொடங்கியிருக்கு. சாய்ராம், இந்த விழாவில் எண்ணற்ற சாய் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு பாபாவுடைய புனிதமான ஸ்ரீ சாய் சச்சரிதத்தை படிச்சிருக்காங்க. ரொம்பவும் ஒரு அற்புதமா இந்த விழா தொடங்கியிருக்கு. சைரம், நம்ம பாபாவுடைய புனிதமான ஸ்ரீ சாய் சச்சரிதம் அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஒரு சக்தி கொடுக்கும், ஒரு ஆற்றல் கொடுக்கும். அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீ சாய் சச்சரிதத்தை ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த சவண மாதத்துல தொடங்கும். ஷிரடியில சவண மாதத்துல முதல் திங்கட்கிழமை இன்னைக்கு பாபாவுடைய அந்த துணிகள்லாம் பாருங்க, சமாதி மந்திரில பாபா முழுமையா வெண்மையில தான் இருப்பாரு. ஒவ்வொரு வாரமும், அதாவது இந்த சவண மாதத்துல வர ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் பாபாவுடைய துணி பார்த்தீங்கன்னா பாபா வெள்ளை துணி தான் உடுத்துவாரு. ரொம்ப ஒரு அற்புதமான நாள். இந்த நாள் ஆகஸ்ட் மாதம் 5ஆம் தேதி 2024 இன்னைக்கு தொடங்குற இந்த மகா பாராயணம் சரியா 7 நாள் நடக்கும். சைராம், 7வது நாள் பார்த்தீங்கன்னா 12ஆம் தேதி, ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி இந்த மகா பாராயணம் முழுமையடையுது. இந்த மகாபாராயணம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சவண மாதத்துல ஷிரடியில வெகு சிறப்பா தொடங்குவாங்க. ஷிரடியில சுற்றி இருக்கும் கிராம மக்கள் எல்லாமே கோதாவரியிலிருந்து அந்த புனிதமான கங்கை தண்ணியை கொண்டு வந்து பாபாவுடைய திருவடிக்கு அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்தான நாள்ல இந்த திங்கட்கிழமையில ஷிரடியில இன்னைக்கு நம்ம பாபாவுடைய புனிதமான மகாபாராயணம் படிக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஷிரடி சாய்பாபா சமஸ்தான ட்ரஸ்ட் பக்தர்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்காங்க. உலகெங்கும் வாழும் சாய் பக்தர்கள் இந்த பாராயணத்துல கலந்துகிட்டு பாபாவுடைய அருளும் ஆசீர்வாதம் பெறுங்க. சைரம், இப்போ பாபாவுடைய அந்த காலையில பாபாவுடைய மங்கள்ஸ்தான் கக்கட ஆரத்தில முடிஞ்ச பிறகு ஊரிய முறைப்படி பாபாவுடைய அந்த புகைப்படம், துனிமாவுடைய புகைப்படம் கொண்டு வராங்க. இந்த துனிமா புகைப்படம் அப்படியே ஷிரடியில ஊர்வலமா கொண்டு போயிட்டு நம்ம சாய் ஆசிரமம் சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த இடத்துல ஊரிய பூஜைகள்லாம் முடிச்ச பிறகு பாராயணத்தை தொடங்குவாங்க. சைரம், நம்ம பாபாவுடைய புனிதமான ஸ்ரீ சாய் சச்சரிதத்தை ஒவ்வொரு நாளைக்கும் 7 சாப்டர் வீதம் 7 நாளைக்கு தொடர்ந்து மகாபாராயணம் பண்ணுவாங்க. கரெக்டாக 12ஆம் தேதி, ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி 7வது நாள் மகாபாராயணம் முடிவடையும். விழா ரொம்ப சிறப்பான ஒரு விழாவா இருக்கும். இன்னைக்கு முதல் நாள் விழாவை தான் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஒவ்வொரு சாய் பக்தர்களுமே நம்ம பாபாவுடைய துனிமா புகைப்படம் வருது. உங்களுடைய பிரார்த்தனைகள் எதுவா இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் நீங்க பிரார்த்தனை பண்ணீங்க, கண்டிப்பா நீங்க வீட்டுல உட்காந்து கூட படிக்கலாம், தப்பு இல்லை. உங்க அனைவருக்குமே பாபாவுடைய அருளும் ஆசீர்வாதமும் கிடைக்கும். சைரம், இந்த விழா எவ்வளவு சிறப்பா நடக்குதுன்னு முழுமையா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. தொடர்ந்து நம்ம பாபாவுடைய துனிமா புகைப்படத்தை ஊர்வலமா கொண்டு போயிட்டு பாபாவுடைய சாய் ஆசிரமம் சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த இடத்துல ஊரிய முறைப்படி இந்த பாபாவுடைய மகாபாராயண விழா ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது. சைரம், ஆகையால ஒவ்வொரு சாய் பக்தர்களுமே நீங்க ஷிரடியில இந்த நேரம் பாபாவை கூட இந்த ஊர்வலத்துல நீங்க இருக்கிறதா நினைச்சுக்கிட்டு உங்களுடைய பிரார்த்தனைகள் பாபாவண்ட முன்வைங்க. கண்டிப்பா உரிய நேரத்துல நம்ம பாபா ஷிரடி சாய்நாதர் உங்களுடைய பிரார்த்தனைகள் யாவுமே நிறைவேற்றி கொடுப்பாரு. இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய எல்லா வல்ல சத்குரு ஷிரடி சாய் தோரகமாய நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். உங்க எல்லோருக்குமே பாபாவுடைய அருளும் ஆசியும் கண்டிப்பா கிடைக்கும். நம் எல்லோருக்கும் இறைவன் ஒருவரே எஜமானர் ஷிரடி சாய்பாபா. ஸ்ரீ சாயை பணிக. அனைவருக்கும் சாந்தி நிலவட்டும். சச்சிதானந்த சத்குரு சாய்நாத் மகராஜி கி ஜெய். சச்சிதானந்த சத்குரு சாய்நாத் மகராஜி கி ஜெய். சச்சிதானந்த சத்குரு சாய்நாத் மகராஜி கி ஜெய். அல்லாஹ் மாலிக். Apa yang
श्रीमन्नारायणदेव आप्तवास्तयो वर्षख्यातेयास्मीय स्नानिकृतं समर्पयामि वयोदिर्गञ्जनेव भूतशर्कराय पञ्चामयानिना स्नानं प्रतिविहितात्मा मयानि पञ्चामस्तानं समर्पयामि पञ्चामस्तानान्तरेण शुद्धोस्नानं सामवेन समर्पयामि श्रीमन्नारायणदेव श्री गणेशाय ओम नमः शिवाय काय करते कर्मासी असेल जे जे ललाटी लिहिले ते तेच जरी होणार वहिले मग ते गुरुविने काय केडले जाणे टेले शिर्डीचे किंवा आपले स्थान सोडा कशासी गुरुची मागे दौडा सुखाचा जे दुःखात बाडा कवण्याचा डा कळेना जैसे जैसे अदृच्छे गडे ते भोगू सुखवासाकडे काय जाऊन या गुरुच्याकडे जरी होणार पुढे चालेना जैसे जयाचे अर्चित नको म्हणता चालणे येत होणार पुढे काय न चालत नेले मजकेचे तर शिर्डीसी नानासाहेब प्रांताधिकारी करून निघाली बसायची फेरी ठाण्याहून दादरावर येऊन वेळभरी बैसले मध्यंतरी एक तास गाडी बसायची यावयास वाटले अवकाश लावू की कामास एखादिया झाली मात्र ऐसी स्फूर्ती तोची आलास दादर आली दादरावरती गाडी एक केवळ बांद्र्यावरती मग बैसत येता गाडी निजस्थानी निरोप आला मज लागुनी मग मी भेट घेता दक्षिणी चालली कहाणी शिर्डीची केव्हा निघणार साई दर्शना किंवा दाळस शिर्डी गमना दीर्घसूत्रा का प्रस्थाना निश्चिंत मना का नाही भाऊनी नानांची आतुरता मेही शरमला आपले चित्ता परिमनाची झाली चंद्रा पूर्ण प्रांजलता निवेदिली त्यावेळी मग नानांचा बोध कळकळीचा प्रेमळ शुद्ध परिस्थिता शिर्डी गमने छोदबोध अतिमोदप्रद झाला तात्काळ निघतो घेतले वचन तेव्हाच नानांनी केले प्रयाण मग मेही मागे परतो न ठेवले प्रस्थान मुहूर्ती मग सर्व सामान आवरोनी सर्व निर्वळ करोनी तोची दिवशी अस्तमाने शिर्डी लागोनी निघालो सायंकाळ पाठील मेल दादरावर उभे राहिल जाणून दादराचे भरले हसील तिकीट देतील घेतले परी मी गाडीत घेऊन जाऊन बसदा वांद्रे स्टेशने गाडी असदा येऊन एक गाडी सुटता आधी सबळता हात ये तिकीट घेतले दादर पर्यंत तोच आरंभी कार्य विघात प्रथमागास्य भक्षिका पात तैसा डोकावत होत की सवे पाहुणी सर्व सामान येऊन बुसे मज कोठे गमन तव म्हणे मी दादराचे जाऊन मेल साधीन म्हणमाडची तव तो सुचवी वेळेवर उतरू नका हो दादरावर मेल ना तिथे थांबणार बोरी बंदर गाठावे होती ते वेळी नाही सूचना मेल दादरवर मिळते ना न कळे मग चंचल मना काय कल्पना उठत्या ते परी ते त्या दिवशी प्रयाण योग साधावा हेची होता सुयोग म्हणून मध्यांतरी हा कथा भाग घडला मनोजोग होचिता तिकडे भाऊसाहेब दीक्षित हो तिथे मार्ग प्रतीक्षा करीत उदय 9-10 अंतर जाहलो शिर्डीत सादर इसवी सन 1910 वर्तमान जे घडले पहा एक साठ्याच्या जवाडा तेव्हा होता राहावा उतरासी तांग्यातून उतरल्यावरी दर्शना सुख्य दाटले अंतरी कधी चरण वंदन श्री आनंद लहरी उसळल्या इतक्या साईचे परम भक्त ताता साहेब नुलगर विख्यात मशिदीतून आले परत म्हणती त्वरित दर्शन घ्या आले जे बाबा मंडळीनिशी वाडीच्या कोपऱ्यापाशी चला आधी धूळ भेटेसी मग ते लेंडीसी निघतील पुढे मग करा स्नान बाबा जग येतेसी मागे परतून तेव्हा मग मशिदीत जाऊन स्वस्थ दर्शन घ्या पुन्हा ऐसे ऐकून घाई घाई धावलो बाबा होते त्या ठाई धुळीत घातले टांगणबाई आनंदबाई मनात नाना साहेब सांगून गेले त्याहून अधिक प्रत्यक्ष पाहिले दर्शने व्याधन्य मानले सापल्य
पावले आले नैनांची कधी ऐकली नाही देखली मूर्ती भावनी दृष्टी निवाली तान भोग सारी हरपली तरसलेली इंद्रिये लादलो साईंचा चरण स्पर्श भावलो जो परामर्श तोच या जीवाचा परमोत्कर्ष नूतन आयुष्य देतुनी ज्यांची लादलो असत्संग सुखावलो मी अंग प्रत्यंग त्यांचे ते उपकार अव्यंग राहुता भंग मजगरी ज्यांचे निभावलो परमार्था ते जिगी करे आप्त भ्राते सोयले नाही तर त्या प्रदेशे निज ते मानी मी केवढा त्यांचा उपकार करून नेहमी प्रत्युपकार म्हणून केवळ जोडून कर चरणी शिर ठेवितो साई दर्शन लाभ घडला माझी आमंचा विकल्प झडला वरी साई समागम घडला परम प्रकटला आनंद साई दर्शनी हीच नवाई दर्शन निवृत्तीचे बालट होई पूर्व कर्माची मावळे सई वीट विषयी हळूहळू पूर्वजन्मीचा बाब संचय कृपावलोकने झाला क्षय आशा बदली आनंद क्षय कर दिलं बाय साईंचे भागे लादलो चरण मानस वाय साचा होईल हंस साई भंत संतावदंस परमहंस सद्योगी पाप ताप दैन्य विनाशी ऐस्या साईंच्या दर्शनेसी पुनीत आज झालो मी भोसी पुण्यराशी समागमे पूर्वील कित्येक जन्मांच्या पुण्यगाठी तीही साई महाराज भेटी हा साई एक मिनिले या दृष्टी सकळ सृष्टी साई रूप हे ताज शिर्डीचे प्रथम दिवशी बाळासाहेब भाट्यांपाशी आरंभ झाला वादावादिसी गुरु कशासी भावा की उडून आपले स्वतंत्रता उडून घ्यावी का परतंत्रता जेने निज करत्या वेदक्षता काय आवश्यकता गुरुची त्याने केले पाहिजे हे ना त्यासी करून काय निघिजे न हलविता हात पाय जो निजे त्या सीताज किजे काय कवने हाचे माझा पक्ष उजू परदी पक्षासी विरुद्ध बाजू दुराग्रहाचा जो तराजू वाद माजून राहिला अंगी दुर्धर देहाभिमान तेने वादावादीचे जनन अहम भावाची ही खून नाही तयाविन वाद जगी प्रतिपक्षाचे निश्चित मत हो का पंडित वेद पारांगत गुरुर गुरुना व्यतिरिक्त पुस्तकी मुक्त केवळ तो दैव थोर की कर्तृत्व थोर वाद चालला हा घनघोर केवळ दैव्यावर टाकून भार काय होणार मी म्हणे तव बोले विरुद्ध पक्षकार होणार असे नाही प्रतिकार होशमान नाही टळणार मी म्हणणार भागले देव्या पुढे कोण जाई एक करिता एक होई देव ठेवा तुमचे चतुराई मान ठाई पडेना मी म्हणे हो म्हणता कैसे हे करील त्यासे जे सर्व आहे आळसा बरे बेसून राहे देव साहे कैसे देव उद्धरे दात मनात मानम गरजे स्वय स्मृती वचन त्याचा अनादर करून तारुण जाणे अशक्य हे ज्याचे त्यानेच करावे लागले किमर्थ गुरुचे मागे आपण असल्या विना जागे गुरु न भागे कैसेनी आपुले सदजाजीर बुद्धी आपुले साधन चित्त शुद्धी ते झुगारून जो कुबुद्धी गुरु काय सिद्धी देई त्या या वादाचा अंत नाही निष्पन्न काही झाले नाही चित्त व स्वाध्यास अंतरोपाही हेची कमाई म्या केली ऐसा वाद घालिता घालिता कोणीही ना तिळभर तकता ऐशा दोन गटका लुटता वाद आटपता घेतला पुढे मंडळी समवेत आम्ही जातो जो मशिदीत बाबा काका साहेबाप्रत परिसापसत काय ते काय चालले होते वाड्यात वाद कशाचा होता भांडत काय म्हणाले हे माळपंत मजगदे पाहत बोलले वाड्यापासून मशिदीपर्यंत मध्यंतरी अंतर्भूत बाबांशी कैसे कळले वृत्त आश्चर्यचकित मी म्हणे असो ऐसा मी वाग्बाण हत झालो निशब्द लज्जा नवत पहिल्याच भेटीस गे अनुचित घडले अविहित मज करवी हे माळपंत नामकरण प्रातःकालीनचा वाद या कारण तेने जी बाबांशी माळ स्मरण मनी मी खून बांधिली देवगिरीचे राजे यादव हे चिते दौलताबादीचे जाधव 13वी शतकी राज्य वैभव वाढवले गौरव महाराष्ट्राचे प्रौढ प्रताप चक्रवर्ती महादेव नामा भूपती पुतण्या दयाचा पुण्यकीर्ती विक्रमे प्रख्याती पावला तोही यदुवंश चुडामणी राम राजा राजाग्रणी मंत्री अवयतांचा भोगणी सर्व लक्षणे हिमाद्री तो धर्मशास्त्र ग्रंथकार ब्रह्म वृंदार्थ परम उदार आचार व्यवस्था संगतवार आरंभे रचणार हिमाद्री व्रत दान तीर्थ मोक्ष गाणी नामे चतुर्वर्ग चिंतामणी ग्रंथ हिमाद्रींनी विख्यात करणी तयांची गिरवाण भाषेत हिमाद्री पंत तोची प्राकृती हिमाडपंत मुत्सद्दी राजकारण होता विख्यात ते काळी परे तो वत्समी भारद्वाज गोत्री तो पंचमी तीन प्रवरी तो यजुर्मी ऋग्वेदाधिकारी तो धर्म आध्यात्मिक शाकाल तो धर्मदमे बाष्काल तो पंडित मी मूर्ख अकुशल का मज पोकळ ही पदवी तो राजकारण धुरंधर मुत्सदी मी अल्पमती मध्यभूती त्याची राज्य प्रशक्ती प्रसिद्धी ओवी साधी मजनी करावे तो ग्रंथ करावे नन्य मी तो ऐसा ढोंबाज्ञ
तो धर्मशास्त्र विशारद सुज्ञ मी अल्पज्ञान तो ऐसा ते यांचा लेखन कल्पतरू नाना चित्र काव्यांचा आकारू मी हे ऐसे बाबांचे लेकरू ये न करू हो वही ओरा चोगा सावतामळी निवृत्ती ज्ञानोबा नामादी सगळी भागवत धर्म प्रवर्तक मंडळी उदयासी आली हे काळी पंडित बोपदेव द्विग्मनी चमके जयांचे सवंगनी तेथे जे हे माडबंद राजकरणी ख्याती गुणगानी जयांची ते दोन्ही पुढे उत्तरे होनी उतरले आदेशे फौजा यावनी जिकडे तिकडे मुसलमानी अंबल दक्षिणी मावळला उगसना या पदवीचे दान चतुराईचा हा सन्मान वादावादीवरी हा वाग्मान अभिमान खंडन व्हावाया होनी अर्ध्या हळकुंडे पिवळे उगीच योग्य ते विन बरळे त्या माझी उघडे डोळे घालून वेळेवर अंजन असो ऐसे ते पूर्वाक्त लक्षण साई मुखोदित विलक्षण प्रसोजित सार्थ नवन नामकरण ते म्या भूषण मानिले की तू यातून मज लाधो शिक्षण वादावादी हे कुलक्षण स्पर्शोण मजे काही क्षण परम कल्पन कालन करीते गळून जावा वादाभिमान ए तदर्थे अभिमान जेने आवरण राहावे भान नित्य निर्विभान असावे रामदाशरथी देव अवतारी पूर्ण ज्ञानी विश्वासी तारी अखिल ऋषिगण मानस विहारी चरण धरी वसिष्ठाचे कृष्ण परब्रह्माचे रूपडे त्यासही गुरु करणे पडे सांदीपणे जागृही लागडे सोसुनी साकडे वाहिले तेथे माझी काय मात वादावादी करावी किमर्थ गुरु विन ज्ञान वा परमार्थ नाही आशासार्थ दुर्गेला वादावादी नाही बरी नको कुणाची बरोबरी नसता श्रद्धा आणि सबुरी परमार्थ तिळवरी साधेना हे पुढे आले अनुभवा हे रीती या नाम गौरवा प्रेमपूर्व सन्निध सद्भावा शुद्ध स्वभावा आदरले असो आता हे कथानक स्वपक्ष परपक्ष विच्छेदक वाद प्रवाद निवर्तक सर्वाचे बोधक समसाम्य असो ऐसे ग्रंथ प्रयोजन अधिकारी अनुबंध दर्शन ग्रंथकाराचे नामकरण कथन श्रवण करविले पुढे आता अध्याय विस्तार हेमाड साई चरणी सादर पुढे यथानुक्रम कथाच विस्तार श्रवण तत्पर भावेजी साईची आपली सुख संपत्ती साईची आपली सुख संवित्ती साईची आपली परम निवृत्ती अंतिम गती श्री साई साई कृपेची या कारणे साई चरित्र श्रवण करणे तेनेची दुस्तर भोवय तरणे कलिमल हरणे निर्मूल स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते भक्त हे माड बंद विरचिते श्री साई समर्थ सच्चरित्योध्याय गोडा श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु शुभम भवतु सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।